Hello, students. How are you all? I hope you all are good. So, before we start our lesson, I would like to ask some questions. So, what are the important things in our life? Can anyone say? Yes, it is air, sunlight, plant, fruit, vegetable, and yes, most important is water. So today we shall learn about water, and our lesson is chapter number 8, the importance of water, subject environmental studies. This is our lesson, chapter number 8. Now let's study one topic after another. So, first of all, we have to know what is water and uses of water. Water is the basis of life. We need water daily. It is used for drinking, bathing, washing clothes, cooking foods, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा। जल जीवन का आधार है। हमें रोज पानी चाहिए। पानी का उपयोग पीने में, स्नान करने में, कपड़े धोने में, भोजन पकाने में या फिर आग को बुझाने में तथा बर्तन साफ करने में, फर्श साफ करने में किया जाता है। Now, we need to know where the water comes from. Where do we get this water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? Let's see. Water on the earth. मतलब अर्थ पे पानी कहाँ से आया? Nearly 70% of the Earth's surface is covered with water, but most of this water is present in seas and oceans. This water is salty. It is not fit for human consumption. पृथ्वी के सरफेस का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इस पानी का अधिक हिस्सा समुद्रों और महासागरों में मौजूद है। यह पानी खारा है। यह मानव के उपयोग के लिए अच्छा नहीं है। सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी कहाँ से मिलता है? हमें we get water from many natural resources. Some such sources are rain, ponds, lakes, rivers, springs, waterfalls, etc. हमें कई प्राकृतिक संसाधनों से पानी मिलता है। कुछ ऐसे स्रोत हैं जैसे कि बारिश, तालाब, झीलें, नदियाँ, झरने आदि सब। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट रिसोर्सेज ऑफ वाटर विच आर द रेन, ponds, lakes, rivers, dams, etc. First, rain. The basic source of water is the rain. A huge amount of water falls on the earth in the form of rain. Some part of it seeps into the soil, but most get collected in ponds, lakes, rivers, and seas. Besides, water is also present in the form of snow and ice on the peaks of high mountains. The heat of the sun melts the snow, changing it into water. This water flows down the slopes as waterfalls and rivers. पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। बारिश के रूप में पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी गिरता है। इसका कुछ हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अधिक अंश तालाबों, झीलों, नदियाँ और समुद्र में एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा पानी पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ और बर्फ के रूप में भी मौजूद है। सूरज की गर्मी इस बर्फ को पिघला देती है, इसे पानी में बदल देती है। यह पानी नदियों के और झरनों के रूप में बह जाता है। Ponds and lakes.
In the rains, most of water gets collected in ponds and lakes. This water is stored here from a long time. Ponds and lakes यानी तालाब और झरने। बारिश का अधिक अंश पानी तालाबों और झीलों में एकत्र हो जाता है। यह पानी लंबे समय तक पॉन्ड्स और लेक्स में जमा रहता है। Rivers. When the ice and snow melts on the high mountains, they change into glaciers. The rivers emerge from these glaciers. They run very fast down the slopes and reach the plains. जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो वे हिम नदी में बदल जाती हैं। इन हिम नदी से नदियाँ निकलती हैं। वे ढलान पर बहुत तेज़ी से भागती है और मैदानी इलाके तरफ पहुंच जाती है। Dams are huge man-made concrete walls built across a river. These walls have large iron gates with which to control the flow of water. Huge artificial lakes are created near a dam. The stored water is used for irrigation the fields through canals. It is also used for generating electricity. बंद एक नदी के पार मानव निर्मित विशाल कंक्रीट की दीवार है। इन दीवारों में लोहे के बड़े द्वार हैं जिनसे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। एक बांध के पास विशाल कृत्रिम झीलें बनाए जाते हैं। संग्रहित पानी का उपयोग नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत पानी जो ज़मीन के अंदर होता है। अंडरग्राउंड वाटर, व्हेन इट रेन्स अ लॉट ऑफ वाटर सीप्स इनटू द अर्थ. It then collects below the rocks. It is called underground water, found deep below the earth's surface. This underground water is got out by 3 methods. जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी धरती में समा जाता है। यह फिर चट्टानों के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमिगत जल कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहरा पाया जाता है। इस भूमिगत जल को 3 तरीके से बाहर निकाला जाता है। सो व्हाट आर दे? A. wells, B. tube wells and C is a hand pumps. Wells. Wide holes dug into the grounds are known as wells. They are lined by stone or bricks. These are found more in rural areas. At the top end of the wall is fitted a framework from which hang a rope and a bucket. This is used to pull out water. This water is fit for drinking. Wells यानी कुएं। जमीन में खोदे गए चौड़े छेदों को कुएं के रूप में जाना जाता है। ये पत्थरों के ईंटों से बनाए गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। दीवार के शीर्ष चोरी पर उसे एक ढांचा लगाया जाता है जहाँ से एक रस्सी और एक बाल्टी लटकाई जाती है। इसका उपयोग पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह पानी पीने लायक होता है। B is a tube wells. These are modern forms of well which are found more in cities. These are run by electricity. The pipes or tubes of the well has filter which separate the sand and other impurities from water. This water is used for drinking and irrigation. ट्यूब वेल्स यानी नलकूप। ये कुओं के आधुनिक रूप है जो शहरों में अधिक पाए जाते हैं। ये बिजली से चलते हैं। कुएं के पाइप या ट्यूब में फिल्टर होते हैं जो रेत और अन्य अशुद्धियों को पानी से अलग करते हैं। इस पानी का उपयोग
पीने और सिंचाई के लिए किया जाता है। नाउ सी hand pumps. Have you seen a hand pumps? Let's know about hand pumps. Earlier hand pumps could be seen regularly, but now they are seen less. Taking out the underground water with them is very easy. The water is used for all household work. We also get water by taps. पहले हैंड पंप भूमिगत पानी को बाहर निकालने में होते थे, लेकिन अब उन्हें हम कम देखते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पानी का उपयोग सभी घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। हमें नलों से भी पानी मिलता है। We already have taken the important information regarding water. Now we'll learn about our next topic, rainwater harvesting, यानी बारिश के बहे जाने वाले पानी को कैसे इकट्ठा करके उसको उपयोग करें। Collection of rainwater at rooftops and storing it in underground tanks by pipes is known as rainwater harvesting. छतों पर वर्षा के पानी का संग्रह और पाइप भूमिगत टैंकों में जमा करने से वर्षा के जल का संचय किया जाता है। Now our next topic is always drink clean water, यानी हमें हमेशा क्लीन पानी पीना चाहिए। Always ensure that the source of drinking water is clean and free for foreign elements. Water should be stored in a clean container. In a rainy season, boil the water before drinking it. हमेशा सुनिश्चित करें कि पीने के पानी का स्रोत स्वच्छ और विषैले तत्वों से मुक्त हो। पानी को एक साफ कंटेनर में संग्रहित किया जाने चाहिए। बरसात के मौसम में पानी को पीने से पहले उबालना चाहिए। Now, water is precious, right? Water बहुत कीमती है। Water is a precious natural resource. Now, in the present time, with increasing in development activities, it has become scarce as well. There are places in the world where it is very difficult to find clean water. So, it's become our duty not to waste water. पानी एक बहुत कीमती प्राकृतिक संसाधन है। वर्तमान समय के विकास गतिविधियों में वृद्धि के साथ पानी का दुर्लभ भी हो रहा है। दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पानी बर्बाद न करें। Now we'll look at some ways as a water saver. Some ways to save water. While brushing your teeth or washing your face, never keep the tap running. Fill water in a mug and use it. अपने दांत ब्रश करते समय या अपना चेहरा धोते समय कभी भी नल को चालू न रखें। एक मग में पानी भरें, इसका उपयोग करें। Never take a shower while bathing. Use bucket and a mug instead. नहाते समय कभी शावर न लें, इसकी जगह बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। Use waste water from the kitchen of water plants. पौधों के पानी देने के लिए किचन से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल करें। Never wash your vehicle with a pipe. Use a bucket and a mug. This way you can contribute to save water. कभी भी अपने वाहनों को पाइप से न धोएं। एक बाल्टी और एक मग का उपयोग करें। इस तरह आप पानी बचाने में योगदान दे सकते हैं। So, remember that every drop of water is count. Every drop of water is important.
हम पानी की हर बूंदों को बचाना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। 1. How much percentage of the earth is covered with water? A 16, B 70। कितने प्रतिशत अर्थ पानी से घिरी है? ए में है 16, बी में है 70, तो आंसर इज ऑप्शन बी 70। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज द प्रेजेंट इन ए ओशियन एंड सीज, बी पॉन्ड्स एंड लेक्स। सबसे अधिक मात्रा में पानी अर्थ पर कहाँ है? समुद्र में या फिर पॉन्ड में? तो आंसर है ओशियन एंड सीज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज। पानी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ए हैंडपंप, बी रेन। आंसर इज बी रेन। 4, अंडरग्राउंड वाटर इज गॉट आउट बाय। भूमिगत पानी यानी जमीन के अंदर का पानी कहाँ से प्राप्त होता है? ए ट्यूबवेल से, बी कैनल से। आंसर इज ए ट्यूबवेल्स। 5th, द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज। कौन सा पानी पीने के लिए स्वच्छ है या सेफ है? ए सी वाटर, बी अंडरग्राउंड वाटर। आंसर इज बी अंडरग्राउंड वाटर। Now question number 2, fill in the blanks with the correct word. So the words are lake, snow, basis, salty and hand pump. I have already filled the blanks with the correct word. Let's read. First, water is the blank of life. तो उसमें आएगा basis. पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। Second, water present in a seas and ocean is salty. Right? Salty आएगा। जो समुद्र का पानी है वो कैसा होगा? खारा। On the high peaks, water is present as a snow. High peak पे water present होता है किस रूप में? स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में। Question number 4, a lake is a large water body. Right? लेक जो है वो वाटर की ज़्यादा मात्रा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर फ्रॉम अ ब्लैंक इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी ड्रिंकिंग वाला पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हैंडपम्प से। राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What do we use water for? हम पानी कहाँ यूज़ करते हैं? We use water from drinking, bathing, washing clothes, cooking food, cleaning utensils and floors, etc. Now question number 2. What is the main source of water? पानी का मुख्य स्रोत क्या है? The main source of water is rain, ponds, lakes, rivers, springs, waterfalls, etc. Now question number 3, how is river formed? मतलब river कैसे बनती है? When the ice and snow melts on the high mountains, they change into glaciers. The rivers emerge from these glaciers. मतलब जो पहाड़ी के ऊपर का बर्फ़ है वो मेल्ट होता है, धीरे धीरे पिघलता है और वो हिम नदी के रूप में बह जाता है और वह रिवर के रूप धारण कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर? मतलब अंडरग्राउंड वाटर मतलब हमने सीखा कि भूमिगत पानी, जमीन के अंदर का पानी। सो आंसर इज व्हेन रेन्स अ लॉट ऑफ वाटर स्लीप इनटू द अर्थ, इट
then collects below the rocks. It is called underground water. मतलब जब बहुत बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. So our lesson is done. Keep reading, keep writing, stay healthy. See you soon. Bye.